So, good afternoon, students. And here is a funda for today. So, you see, this is the question through which I'll clear the concept. The question is कि ये एक solid sphere है m mass का, solid sphere of mass m and radius r, and it is in pure rolling towards the wall with a velocity v naught. It's in pure rolling towards the wall with a velocity v naught. All right. Floor is rough. Its coefficient of friction is mu, but the wall is smooth and the collision is perfectly elastic. Means sphere collide with the sphere, this sphere, the sphere collide with the wall and rebounds elastically. So when it will rebound elastically, it will slide. And after what time, it will again start pure rolling. So see what will happen after the collision. So you got to know the parameters. There is smooth, there is rough, mu, solid sphere, mass m, radius r, in pure rolling towards the wall with a velocity v naught. Collision is perfectly elastic. Right? There is a question कि collision के कितने देर के बाद इसकी दोबारा से pure rolling start हो. So what will be the parameters exactly after the collision? I draw here in the figure. Look at this. You see, after the collision, its velocity will rebound. It will become v naught along this direction. All right. Velocity rebound होगी और इस ओर v naught हो जाएगी. बट ओमेगा तो जो था वो वही रहेगा. तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं वॉल में. There is no friction on the wall, so omega will remain in the same direction. And you know that omega is equal to what here? V naught by r, because this was in pure rolling. So omega is what? V naught by r. तो that means कि जो lowest point है इसकी net velocity किस ओर होगी? इस ओर होगी ना, क्योंकि ओमेगा से जो वेलोसिटी मिलेगी वो भी इस ओर है और सेंटर की वेलोसिटी v naught भी इस ओर है. So you know that कि प्योर रोलिंग में सबसे नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0. इज दैट क्लियर? तो जब v naught भी इस ओर है और ओमेगा के ड्यू टू जो वेलोसिटी मिलेगी रोटेशन से वो भी इस ओर है, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर फ्रिक्शन इस ओर लगेगा, पीछे क्यों. कितना लगेगा? म्यू एम जी. तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में है वो इस ओर के मोशन के लिए कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस कराएगा? मास m into a equals to mu mg. So the retardation will be mu g. It's in that direction. Velocity is along this direction, so I'm calling it what? Retardation. Now see, when the pure rolling will start, you know that lowest point की velocity क्या आनी चाहिए? 0. तो तब इसकी velocity इस ओर v है और तब ओमेगा इस ओर होगा. ओमेगा इस ओर होगा. So that कि रोटेशन के ड्यू टू वेलोसिटी क्या होगी इस पॉइंट पे? पीछे की ओर मिलेगी. और यानी वेलोसिटी आगे है तो नेट वेलोसिटी क्या रहेगी? 0. मतलब इस मोमेंट पे v will be equal to what? Omega into r. So that k, the velocity that the lowest point will get with respect to center due to the rotation will be in the backward direction, and that will be what? Omega into r. That will be omega into r. और इस ओर की वेलोसिटी v, so अगर v omega into r के इक्वल है, v अगर ओमेगा इंटू आर के इक्वल है तो क्या होगा? इसके इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 आ रहेगी लोएस्ट पॉइंट की, एंड इट विल स्टार्ट व्हाट? प्योर रोलिंग. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो नाउ वी डू इट. लेट्स से कि t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी ये प्योर रोलिंग में आ गया. तो आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी विल बिकम व्हाट? वेलोसिटी v हो जाती है t टाइम के बाद v इक्वल्स टू v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी. इज दैट क्लियर? दिस विल बी व्हाट? The velocity v equals to v naught minus mu dt, because it's what? Retardation. Now you'll see कि जो force of friction से center के about torque होगा, tau will be mu mg into r. Tau will be what? Mu mg into r. So this torque will produce the
एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब व्हाट, जिस ओर ओमेगा है उस डायरेक्शन के लिए एंगुलर रिटार्डेशन होगा, क्योंकि आप देखो ओमेगा इज व्हाट क्लॉकवाइज, force of friction का torque is what anti-clockwise, but after the collision I'm taking that this direction is positive, तो मैं बोलूंगा इसका ओमेगा नेगेटिव है, ओमेगा नॉट नेगेटिव है, और बाद में जो हमें ओमेगा रिक्वायर्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है। इज दैट क्लियर? सो ये टॉट टाउ कितना अल्फा प्रोड्यूस करेगा, टॉट टाउ इक्वल्स टू यू नो आई अल्फा, सो दिस विल बी आई इज 2/5 mr square into alpha is equal to mu mg into r. So you get that alpha is equal to, आपको alpha की वैल्यू जो मिली that is, you see, you got that alpha is equal to m से m cancel होगा, so this will be mu g into 5 upon 2 upon r. Is that all right? 5 mu g, m से m cancel हो गया, r and r square, so that will be what, 5 mu g upon 2r, this will be the alpha. Now I write the equation for the omega also. So omega final is equal to minus omega naught plus alpha into t. You try to understand this well, because now I'm taking that this direction is positive. अब इस ओर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए मैंने ये वेलोसिटी पॉजिटिव ली। कोलिजन के बाद इस ओर की वेलोसिटी भी v नॉट है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज कराएगा और उस ओर की ओमेगा को डिक्रीज कराएगा, फिर ग्रेजुअली इस ओर की ओमेगा प्रोड्यूस कराएगा। सो आफ्टर द कोलिजन हम लोगों ने ओमेगा के लिए क्या किया कि ओमेगा के लिए एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, तो बाद में ओमेगा पॉजिटिव, पहले ओमेगा नेगेटिव माइनस ओमेगा नॉट, और एल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, एल्फा का सेंस क्या होगा, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज, सो दिस पॉजिटिव। आप देखो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क विल प्रोड्यूस एंटी क्लॉकवाइज एंगुलर एक्सेलरेशन, so इसलिए alpha has been taken as what, positive. So now from here we have, if there is a pure ruling, पहले भी pure ruling था, बाद में भी pure ruling है, so v equals to v naught minus mu dt, और यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा v by r, ओमेगा will become what, v by r, और माइनस ओमेगा नॉट था v naught by r, माइनस दिस प्लस what, ये माइनस था, this was minus, this was माइनस, ये तो मैंने ये वाला इक्वेशन लिखा ना, अब मैं ये वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, v by r minus v naught by r plus alpha, so alpha is 5/2 into nu g upon what, r, into what, t, into what, t. So this is clear. Now from this equation, first we are going to eliminate what, v, so that we get the value of what, टाइम t की वैल्यू है। तो हम लोग इससे v को हमें एलिमिनेट करना है, मैं यहां से सबके r कैंसिल करता हूं। अब वो ये भी v है और ये भी v है, तो मैं दोनों v को इक्वेट कर दूंगा। हमने क्या किया, इन दोनों को v को हम लोग इक्वेट करते हैं, सो दैट बिकम्स की v नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी इज इक्वल टू v नॉट माइनस ऑफ v नॉट प्लस 5/2 इंटू म्यू जी इंटू टी। तो दिस म्यू डी टी इज ट्रांसफर टू दैट साइड, दिस बिकम्स 2v naught is equal to 5/2 mu dt plus mu dt. So that will become what? 7/2 mu gt. That means time t becomes 4v naught by 7 mu g. It means what? After this time, again its pure ruling will start. Starting में देखो pure ruling नहीं थी. Starting में pure ruling क्यों नहीं थी? Because जैसे ही कोलिजन के बाद ये शोर आना स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी v नॉट भी शोर थी, ओमेगा नॉट शोर था, तो रोटेशन वाली वेलोसिटी भी शोर थी,
इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी 0 नहीं हो सकती थी। एंड यू नो दैट कि प्योर रोलिंग में लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। आप समझ गए ना? तो जो टाइम आ गया, टाइम टी इज दिस, अगर पूछा जाए उस मोमेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, तो उस मोमेंट पे वेलोसिटी के लिए आप टाइम टी की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दोगे। आप टाइम टी की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में डाल दो, राइट? तो इससे वेलोसिटी वी आ जाएगी। और अगर ओमेगा निकालना हो तो जो वेलोसिटी वी आएगी, आप उसे ओमेगा के लिए वी बाई आर कर दोगे, दैट विल बी व्हाट? वेलोसिटी। सो आई होप कि दिस कॉन्सेप्ट गॉट क्लियर। शेयर मीन्स कि प्योर रोलिंग के लिए आपको लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो चाहिए। सो केवल ये नहीं कि आप सोचो बस v इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर है, आप उसके रोटेशन का सेंस भी देखोगे कि क्या रोटेशन के सेंस से लोएस्ट पॉइंट को जो वेलोसिटी मिलेगी, वो सेंटर की जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को कैंसिल करेगी या नहीं करेगी। अगर वो वेलोसिटी v ओमेगा इनटू आर की इक्वल है, राइट, बट उसका सेंस ऐसा है कि वो जो ओमेगा इनटू आर वाली वेलोसिटी मिलेगी, वो v नॉट को सपोर्ट कर रही है, तो इट विल नॉट बी प्योर रोलिंग, दो उस टाइम पे v ओमेगा इनटू आर की इक्वल। All right, students. So I hope this concept got cleared.